آپ دیکھ رہے ہیں TNN نیوز۔ ایک نظر ڈالتے ہیں علاقائی بلیٹن پر۔ کوہاٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے سید ذوالفقار علی نے آزاد امیدوار کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ مزید ملک یاسین سے جانتے ہیں۔ جی ملک یاسین۔ جی شکریہ۔ میں اس وقت ضلع کوہاٹ کے علاقے استرزئی میں موجود ہوں۔ یہ علاقہ جو ہے بہت ہی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، لیکن یہاں پر جو ہے پیپلز پارٹی نے اپنا امیدوار جو ہے وہ نہیں کھڑا کیا۔ تو یہاں پر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے تو آزاد امیدواروں کی اپنی طرف سے پارٹی نے کوئی اعلان نہیں کیا، لیکن یہاں پر آزاد امیدوار جو ہیں اپنے تعلقات پہ عوام کو جو ہے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جو الیکشن میں کھڑے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے ساتھ علاقے کی ایک معتبر شخصیت، علاقے کے سید اور ریٹائر چیف جسٹس ابن علی کے جو فرزند ہیں ڈاکٹر سید ذوالفقار علی، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس الیکشن میں کس کو سپورٹ کرتے ہیں اور اپنے علاقے کی عوام کو کیا پیغام دیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بتائیں ڈاکٹر صاحب۔ ہاں جی، بہت بہت شکریہ جی آپ لوگوں کے آنے کا۔ آپ نے بالکل صحیح بتایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہے کہ پارٹی کی حیثیت سے ان انتخابات کا بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، لیکن ہمارے سامنے ایک صورتحال تھی اور ہم ظاہر ہے میدان کو بالکل خالی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورے کے بعد، اپنی پارٹی میں کے بڑوں میں مشورے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس ضمنی انتخاب میں عباس آفریدی صاحب کو مکمل ان کے ساتھ تعاون کریں گے، ان کو سپورٹ کریں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ فتح اس ضمنی الیکشن میں عباس آفریدی کی ہوگی۔ ہماری ان سے آئندہ آنے والے جنرل انتخابات کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں بھی، جنرل الیکشن میں بھی انشاءاللہ ہم ایک دوسرے سے تعاون کر سکیں گے۔ اس کا حتمی فیصلہ تو ظاہر ہے ہماری پارٹیاں کریں گی، لیکن جو ہماری آپس میں بات چیت ہوئی ہے اس میں یہی ہے کہ کوہاٹ کی سطح پہ کم از کم عباس آفریدی صاحب اور ہمارے درمیان اتحاد کے امکانات ہیں جنرل الیکشن میں بھی، اور ابھی ضمنی الیکشن میں ہم ان کی بھرپور مدد کریں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ یہاں پر آپ نے ڈاکٹر سید ذوالفقار علی کی باتیں سنی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بائیکاٹ جو ہے پارٹی کی جانب سے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہاں پر ہمارے اپنے ذاتی معاملات ہیں، اپنے جو نیشنل معاملات ہیں، ان کی وجہ سے ہم یہاں پر عباس آفریدی کی حمایت کریں گے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں میرے ساتھ ساتھ میرے علاقے کی جتنی عوام ہے۔ تحریک لبیک پاکستان نے ملک بھر کی طرح منشن آباد میں بھی مہنگائی کے خلاف ہڑتال کی کال دے دی۔ مزید جانتے ہیں TNN نیوز کے نمائندے احمد یار کھوکھر سے۔ جی احمد یار کھوکھر۔ جی شکریہ۔ میں اس وقت موجود ہوں انجمن تاجران منشن آباد کے آفس میں، جہاں پر میرے ساتھ سٹی صدر میاں محمد رفیق زرگر اور مرکزی جنرل سیکرٹری امن ندیم زرگر ہیں موجود ہیں۔ کل TLP نے مہنگائی کے خلاف ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے۔ آئیے سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے، کل ہڑتال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سر بتائیے کہ کل کا ہڑتال کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بروز سوموار 27 تاریخ کو ہمیں ہڑتال کا کہا گیا ہے، لیکن ہم پرزور اس ہڑتال کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ تاجران کے حالات پہلے ہی بہت خراب ہیں اور اوپر سے یہ ہڑتالیں شروع کر دی ہیں۔ یہ انتہائی نامناسب موقع ہے اور نامناسب بات ہے۔ ایک سیاسی جماعت اس ایشو کو وہ سیاسی مسئلہ بنا کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، حالانکہ تاجران کا یہ ذاتی مسئلہ ہے۔ پہلے ہی تاجران بڑے پریشان ہیں، عوام پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے پس رہی ہے اور مزید عوام کو پریشان کیا جا رہا ہے، لہذا ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ جی بالکل، تاجران پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، مزید ہم دکانداروں کو پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ اس وقت ہمارے ساتھ مرکزی انجمن تاجران کے جنرل سیکرٹری میاں امن ندیم زرگر موجود ہیں۔ آئیے سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، کل کے ہڑتال کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی، کل بروز سوموار ایک سیاسی جماعت کی طرف سے ہڑتال کی کال آئی ہے۔ ہم نے
ताजरों के साथ तवील मुशावरत के बाद फैसला किया है कि हम इस सियासी बुनियादों पर होने वाली हड़ताल को मुस्तरद करते हैं। कल तमाम हमारी दुकानें, मार्केटें और अदारे तमाम खुले रहेंगे और हम इस मुश्किल वक्त में, जबकि हुकूमत पे एक मुश्किल वक्त है, हम मुश्किल वक्त में हम हुकूमत के साथ हैं और तमाम ताजर इंशाल्लाह कल अपने भरपूर तरीके से कारोबार जारी रखेंगे। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि हमने ताजरान के साथ तवील मुशावरत की है, जो कि कल हड़ताल में सियासी जमात का साथ नहीं दिया जाएगा। हुकूमत पहले ही मुश्किलात का शिकार है, हम मज़ीद उसको मुश्किल में नहीं डाल जाते। जी अंजुमन इस्लाम माशरा अराकीन प्रेस क्लब और अहलियान राजा जंग का लेस्को की जानिब से राजा जंग फीडर पर बेहतरीन काम करने पर लेस्को टीम को खराज तहसीन। तफसीलात के मुताबिक राजा जंग का अलहदा फीडर, जो कि अहले इलाका का एक दरीना मुतालबा था, उसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए मेजर प्रोडक्शन का खुसूसी शुक्रिया अदा किया है कि 2 हफ्तों का काम सिर्फ 2 दिन में कर देना काबिल तहसीन है। इस मौका पर लेस्को हुकाम का कहना था कि तकरीबन 60 से 70% काम मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह रमजानुल मुबारक से पहले पहले राजा जंग के लिए नए बिजली के फीडर का काम मुकम्मल हो जाएगा। मालम जब्बा सवात में सजा स्नो बोर्डिंग और सेकिंग मुकाबलों का मेला, मर्दों के साथ साथ खवातीन खिलाड़ी भी एक्शन में नजर आईं। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी समसिंग मालम जब्बा सिकी रिजॉर्ट के ताउन से मालम जब्बा सिकी रिजॉर्ट पर सजा होम रन सिकिंग मुकाबलों का मेला, जिसमें मुल्क भर से 80 से ज्यादा एथलीट्स ने शिरकत की। मुकाबलों में मर्दों के साथ साथ स्नोबोर्डिंग में खवातीन खिलाड़ी भी एक्शन में नजर आई। मर्दों के सिकिंग मुकाबले में जाहिद खान ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि स्नोबोर्डिंग में उमेश खान फाते रहे। होम रन स्नो फेस्टिवल में खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी की जानिब से रवायती रबाब मौसीकी का तड़का भी रखा गया था, जिससे सयाह खूब महजूज हुए। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया में साइंसी मॉडल्स की नुमाइश का एहतमाम किया गया। तलबा के तैयार करदा मॉडल्स ने देखने वालों को हैरान कर दिया। देखते हैं जहानिया से नसरुल्लाह सियालवी की ये रिपोर्ट। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया के तलबा ने अपनी खुदादाद सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए साइंसी मॉडल तैयार किए और स्कूल में मुनक्कद साइंसी नुमाइश में पेश किए। नुमाइश में तलबा ने शुरका को मॉडल की तफसीलात से भी आगाह किया और मॉडल में इस्तेमाल होने वाली अशिया की तफसीलात भी बताई। ये एक बहुत सस्ता और आसान तरीका है बिजली पैदा करने का। जब पहाड़ों से पानी आता है तो आगे हम उसे डैम के अंदर स्टोर कर लेते हैं और फिर विंड्स ऑफ टरबाइन के ऊपर जब ये गिरता है पानी तो वो रोटेट करती है और आगे कोयल ऑफ जनरेटर भी रोटेट हो जाती है, जिससे मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और आगे बिजली पैदा होती है। तलबा के तैयार करदा साइंसी मॉडल में शुरका ने खूब दिलचस्पी ली। शुरका का कहना था कि ऐसी सरगर्मियाँ तलबा में आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करती हैं और तख्लीकी सोच को परवान चढ़ाती हैं। ये साउंड वेव डिटेक्टर है, इसके ज़रिए हम 50 हर्ट्ज़ से 300 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी को देख सकते हैं। ये मैंने किताबों से आइडिया हासिल किया और मेरे जहन में एक ख्याल आया कि मुझे इसका एक मॉडल बनाना चाहिए, फिर मैंने ये मॉडल तैयार किया। साइंसी मॉडल की नुमाइश की ये कावश काबिल तहसीन भी है और ऐसी सरगर्मियाँ तलबा के मुस्तकबिल में मावन भी साबित होंगी। कैमरा टीम के हमरा नसरुल्लाह सियालवी, TNN न्यूज़ जहानिया। जाफराबाद डेरा अलायार के सरकारी अस्पताल में सेहत के अदम सहूलियात और अद्वियात की फराहमी पर MS अस्पताल के खिलाफ जमात इस्लामी यूथ के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मज़ीद जानते हैं मिस्री बुकटी से। हाँ जी बिल्कुल, जमात इस्लामी यूथ की जानिब से MS अस्पताल डेरा अलायार के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और मुजाहरीन ने एहतजाजी कैंप कायम कर दिया है। अस्पताल के सामने धरना देकर बैठ गए हैं और इनका कहना है कि डेरा अलायार के सिविल अस्पताल में इंतहाई करप्ट MS तैनात कर दिया गया है और मौजूदा MS की गरीब आवाम के साथ गैर अखलाकी रवैया काबिल मज़म्मत है। तो मुजाहरीन ने हुकूमत बलूचिस्तान से मुतालबा किया है कि करप्ट MS को हटाकर यहाँ ईमानदार ऑफिसर तैनात किया जाए। आइए इन मुजाहरीन के पास जाते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका मज़ीद क्या कहना है। आज का जो हमारा ये एहतजाज है ये करप्ट एक नाअहल ऑफिसर के ख़िलाफ़ है। करप्ट के साथ साथ नाअहल के साथ साथ एक पढ़ा लिखा ऑफिसर जो 17 और 18 ग्रेड की सीट पर बैठा हुआ है, उसके साथ आप गुफ्तगू करें तो उसका लहजा अजीब है।
जब उनसे कोई सवालात किए जाते हैं तो उसका यही होता है, जवाब यही होता है कि आप रोड पर चले जाएं, आप मुझसे बात नहीं कर सकते, मैं आवाम का नौकर खादिम नहीं हूँ, मैं बहुतारों का, वडेरों का, जागीरदारों का खादिम नौकर हूँ, उनकी तवज्जुह से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तो एमएस साहब ने हमें रोड के लिए रास्ता दिखाया है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम रोड पर बैठे हुए हैं। और रात की बात बताता चलूँ कि यहाँ पर फ्लेजल भी दस्तयाब नहीं है। एक टेबलेट होती है फ्लेजल और पेनाडाल, यहाँ पर फ्लेजल और पेनाडाल दस्तयाब नहीं है, लेकिन हमारी यहाँ की दवाई जो है सिंध शहजाद कोर्ट में फ़रोख्त हो रही है। ये एक अजीब अलमिया है कि यहाँ पर आम आदमी को फ्लेजल और पेनाडाल दस्तयाब नहीं है, यहाँ से ये दवाई कैसे जा रही है शहजाद कोर्ट में, वहाँ पर कैसे फ़रोख्त की जा रही है। तो हमारा यही मुतालबा है कि जब तक ये एमएस यहाँ से नहीं हटेगा तब तक हम बैठे रहेंगे। आज का धरने का हम लोगों का मकसद यही है, आवाम को इस हॉस्पिटल में कोई भी सहूलत मौजूद नहीं, दवाइयाँ अभी बाहर से लेते हैं, और जब जो कोई एमएस के पास अपना ले जाता है, भाई हमारे साथ डॉक्टर हजरात अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं, तो एमएस उनको रोड का रास्ता दिखाता है और उनको थ्रेट दे के बोलता है हॉस्पिटल में दाखिल होना आप लोगों का ममनू है। और ये करप्ट नाइल एमएस को हटाओ और जाफराबाद को बचाओ। आज हमारा जो इस धरने का मकसद है वो एमएस जाफराबाद के ख़िलाफ़ है कि उसको हटाया जाए। ये एक इंतहाई करप्ट ऑफिसर है, इसने यहाँ पर इस हॉस्पिटल को अपना प्राइवेट हॉस्पिटल बनाया हुआ है। उनके पास अगर हम किसी भी मसले के बारे में जाते हैं तो वो कहते हैं कि मेरी मर्ज़ी, मैं जो कुछ करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। आम आवाम को कोई हक़ नहीं है कि वो मुझसे किसी भी चीज़ के बारे में पूछें, और हम आम आवाम हैं और हम आम आवाम के पास इनके ख़िलाफ़ ठोस और वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि ये करप्ट ऑफिसर है। यहाँ के जो दवाइयाँ हैं वो बाहर के मेडिकलों में बेची जाती हैं। इसके अलावा हम जब भी अपने इलाज के लिए इस DHQ का रुख करते हैं तो हमें सिर्फ एक ही पर्ची मिलती है जिस पर लिखा होता है रेफ़र टू सिंध। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि गरीब आवाम को सेहत के सहूलियात फ़राहम करे, न कि गरीब आवाम के साथ इस तरह के बदमाश ऑफिसर तैनात करके गैर अखलाकी रवैया अख्तियार किया जाए। तो मुजाहिरीन ने एमएस के तबादले तक अपने एहतियात को जारी रखने का ऐलान कर दिया है। जी, मानावाला में कौम के मामारों की जिंदगियां कौम के महाफिजों ने दाव पर लगा दी। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे इल्म के हसूल के लिए बसों की छतों पर सफर करने पर मजबूर, जबकि RT सिक्योरिटी महकमा ट्रैफिक भी आंखें बंद किए किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। जाफराबाद में डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद नजीबुल्लाह तरीन ने शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया, जिसमें जिला के तमाम अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद नजीबुल्लाह तरीन ने जिला के तमाम अफसरान के हमरा DC ऑफिस में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। DC ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ने पौधे लगाए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि पौधा लगाना सदका जारिया है। माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए सबको अपने हिस्से का पौधा लगाना चाहिए। बज़्म मोहब्बत हासिलपुर के ज़रिए तमाम जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के एजाज़ में तकरीब तहसीन मुनक़िद हुई। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी ने गुफ्तगू की और मेहमानों को खराज तहसीन पेश किया। आखिर में मेहमानों को तारीफी शील्ड्स भी पेश की गई। नौशहरा के इलाके उमराबाद शेदो के मकाम पर एक खातून कुएं में गिरने के बायस मौका पर जाँ बहक। रेस्क्यू 1122 टीम ने पेशावराना तरीके से जाँ बहक होने वाली औरत की लाश को निकालकर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अब रुख करते हैं हासिलपुर का, जहां तकरीबन 2 माह बाद इंटरनेशनल बाइकर मोहम्मद फ़हीम ज़िया मोटरसाइकिल पर उम्रा अदायगी के बाद हासिलपुर पहुंच गए। शहरियों और दोस्त अहबाब की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान भर से 26 इंटरनेशनल बाइकर्स ने उम्रा की सआदत हासिल की। इस मौका पर फ़हीम ज़िया ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि मेरे वालिदैन की दुआओं का समर है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो गया है। इंटरनेशनल बाइकर्स खुश नसीब हैं जिनको शाही मेहमान बनाया गया। कहीं -डिग्री टेम्परेचर तो कहीं गर्मी, लेकिन अल्लाह का घर और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक देखने का इश्तियाक था। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई के खोस कोयल माइंस एरिया में नामालूम अफराद का कोयला की कानों में काम करने वाले मजदूरों के डेरा पर फायरिंग और साथ में कोयले की कानों को आग लगा दी, जिससे 11 कोयला कान जल गए। 4 अफराद जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए।
DPO कसूर की हिदायत पर पुलिस का जिला भर में पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO थाना सिटी चूनिया और उनकी पूरी टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 9 पतंगबाजों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जा से कसीर तादाद में पतंगे और धाती डोर की चरखियां बरामद कर ली। ननकाना साहब में रात भर चोरों का राज कायम। अवामी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली ननकाना पुलिस बेखबर। डाकू मुतअद्दिद दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए ले उड़े। दूसरी जानिब ननकाना के नवाही गांव कोट गुलाम रसूल में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फॉर बॉयज़ के टीचर नवीद उर्फ चांद की स्कूल में डेरेबाजी। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। ननकाना साहब में एक ही रात में चोरी की वारदातें। चोरों की DPO ननकाना साहब को सुबह सवेरे सलामी। मकामी पुलिस शहर ननकाना का तहफ़्फ़ुज़ करने में पूरी तरह नाकाम। चोरी के दौरान चोर अपने कपड़े और गाड़ी के नंबर प्लेट भी तब्दील करते रहे। पुलिस वारदातों का खोज लगाने में मसरूफ है। दूसरी जानिब स्कूल टीचर बच्चों को तालीम देने की बजाय अपना खिदमतगार बनाने लगा और खुद मोबाइल का हर वक्त बेजा इस्तेमाल करता है। अहले इलाका ने आला हुकाम से ऐसे कौम के मामारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए TNN न्यूज़।